सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों आज इस्तिफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार, अंबरपेट और सईदाबाद मंडल के 1000 अहल अफराद में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। उनके हमरा रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मुकामी कॉरपोरेटर्स, MROs, डिप्टी MROs भी मौजूद थे। असम्बली हल्के मलकपेट में आसरा पेंशन तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें इस्तिफादा कुनिंदगान के अलावा MIM के सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के रियासत तेलंगाना के गवर्नर के ओहदे पर फायज होकर 3 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने आज राजभवन में एक प्रोग्राम से खिताब किया और बतौर गवर्नर रियासत में उनकी कारकर्दगियों और फलाही इक़दामात को तफसीली तौर पर बयान किया। इस दौरान गवर्नर ने टीआरएस हुकूमत की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करने पर शदीद नाराज़गी जताई और कहा कि खातून गवर्नर होने की वजह से उनके साथ इम्तियाजी सुलूक किया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी भी की गई और उनके बगैर असम्बली इजलास भी मुनक्किद किए गए। तमिलिसाई सुंदरराजन का कहना है कि गवर्नर के ओहदे पर फायज होने के 3 सालों में बस उनकी तौहीन ही की गई। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत तेलंगाना के मसाइल हल करती तो लोग राजभवन क्यों आते। वज़ीर आला KCR की जानिब से सदरन कौंसिल इजलास में शिरकत न करने पर भी उन्होंने सवाल उठाए और अपने खिताब में उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के मसाइल पर उन्होंने वज़ीर आला को ख़त लिखा, हॉस्टल्स और अस्पतालों में हालात बदलने पर जोर दिया, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके लिए इमदाद जारी की। ताहम रियासत में क़बायलियों की बहबूद के लिए मुनक़िद प्रोग्राम पर उन्होंने इत्मीनान जताया। गवर्नर की जानिब से टीआरएस हुकूमत को राजभवन मदऊ करने के बावजूद हुक्मरान जमात के वहां ना जाने पर भी गवर्नर नाराज़ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इज्जत की ज़रूरत नहीं है, ताहम वो चाहती हैं कि राजभवन का एहतराम किया जाए। Certain things because certain people may think why these all informed to the people. But I think in the history of Telangana, I always feel the people of Telangana are more cultural, the affection they show to each other, particularly when I started celebrating the Badukama with women with different walks of life, even which had my housemates, and with journalists and doctors and all the other walks of life. I found the culture, the way they interact and share their views and thoughts and love and affection. But whenever we wanted to reach out people, definitely I faced some hurdles. Why I want to say some of the experience? Because for the past 3 years, every state writes its history. And 3 years, the state will write a history how a women governor is discriminated. But that discrimination did not halt this governor. Why I am telling women governor? I am not discriminating. I always don't reach out or demand a right because I am a woman. We always work like a man, and we work more than a man, and we reach out and we get the right by ourselves, by our performance. That is my view. Even during my previous years, I reached out my position because of that only, not because of my getting some allotment or reservation because I am a woman. But we all have a respect to the womanhood. So Sammaka Saraka, we plan to go. As you know, it's almost, it will take 8 hours. And we asked for a helicopter from the government. Till last minute, we were not informed whether they will give the helicopter or not. Early morning, we started by car. Then some of the people called me and told, Samakka Saraka will be there only till 4 o'clock. The time you have started, whether we don't know, you will reach there. Because they will go to the forest. Then I told, I am going there to support my tribal population, to pray the great goddess of Samakka and Saraka.
So without seeing me, Sammaka, Saraka won't leave to the forest. Definitely they will stay. Exactly 4:30, almost 4:50 they told 5 o'clock they will return. Exactly 4:35 reached and I prayed Sammaka, Saraka. Why I am telling this is not to pinpoint anybody, but the highest office should be respected. And if it is something is not provided, let them inform. Why the office is treated like this? To my knowledge, I have done justice to my duty. शहर हैदराबाद में फिर एक बार मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। खैरताबाद, लकड़ी का पुल, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और टैंक बैंड के अलावा दीगर इलाकों से मूसलाधार बारिश होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि एलबी नगर, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, हिमायत नगर, गांधीनगर, नारायणगुड़ा, बशीरबाग, कवाड़ीगुड़ा, एबट्स नामपल्ली में भी मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के बेशतर मकामात पर हो रही बारिश के सबब तमाम सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं और ट्रैफिक में खलल पड़ा है। नशेबी इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया है और आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि मकानात में भी पानी दाखिल हुआ है, जिससे लोगों के साजो सामान को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने रियासत के तमाम अजला बिलखुसूस शहर हैदराबाद में आने वाले 2 दिनों के लिए बारिश की पेश क़यासी करते हुए खबरदार किया है। वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर व रुकन कौंसल के कविता ने आज बालापुर गणेश के दर्शन किए। कविता ने इस मौके पर खुसूसी पूजा की। उनके हमरा महेश्वरम साबिक एमएलए तीगला कृष्णा रेड्डी, टीआरएस पार्टी यूथ लीडर पी कार्तिक रेड्डी, सीनियर कायदीन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर के कविता ने इल्जाम लगाया कि रियासत में फलाह व बहबूद को रोकने की साजिशें हो रही हैं और माहौल को बिगाड़ा जा रहा है ताकि रियासत की मैशियत मुतासिर हो। एमएलसी ने उम्मीद जताई है कि लॉर्ड गणेश की मेहरबानी से रियासत की तरक्की जारी रहेगी और तमाम लोग खुश रहेंगे। रुकन कौंसल ने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान की नंबर 1 रियासत बनने के लिए तैयार है। उत्साहंगा ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి వచ్చిందంటే బాలాపూర్ విగ్రహం ఎట్లా ఉంటుంది, ఈసారి లడ్డు ఎంత వేలానికి పోతుంది అనేటటువంటి అంశాల పట్ల ప్రతి ఒక్కరం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మాట్లాడుకునేటటువంటి సందర్భం ఉంటుంది. అటువంటి బాలాపూర్ వినాయకుడిని ఈరోజు దర్శించుకోవడానికి రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. బాలాపూర్ గ్రామస్తులందరూ కూడా ఎంతో శ్రద్ధతోని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళే గ్రామస్తులే ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ప్రతి సంవత్సరం దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసి ఈసారి అయితే మరీ ప్రత్యేకంగా మంచి పెద్ద సెట్ వేసి చాలా బాగా చేయడం జరిగింది. సో ఇటువంటి కన్నుల పండుగ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో దర్శించుకోవడం, బాలాపూర్ గ్రామానికి రావడం, కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పద్ధతిని, ఈ యొక్క మంచి ఒరవడిని ఇలాగే కొనసాగించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఈ వినాయకుడు అంటేనే మరి మన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున అందరం కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో 9 రోజులు జరుపుకుంటాం. ఆ స్వామి దయ వల్ల మన రాష్ట్రానికి ఎటువంటి విఘ్నం లేకుండా జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి నిరాఘాటంకంగా కొనసాగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. అనేక మంది అనేక ఇబ్బందులు పెట్టాలి, మనకు డబ్బులు రాకూడదు ప్రభుత్వానికి, లేకపోతే పేదవాళ్ళకి జరిగేటటువంటి సంక్షేమం ఆపాలి, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలలో ఒడిదుడుకులు సృష్టించేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఆ విఘ్నేశ్వరుడి దయ వల్ల ఆ విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోవాలని చెప్పి మన ప్రభుత్వం, మన రాష్ట్రం మంచిగా ఉండాలి, ఇండియాలో నంబర్ 1 కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, గణేష్ మహారాజ్ కి జై, బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कल यानी जुमा को गणेश जुलूस के पेश नज़र पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर हैदराबाद में पुरअमन माहौल की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। सीवी आनंद ने बालापुर तक टैंक बैंड रूट मैप का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस एहलकारों से किए गए इंतजाम से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उन्हें ज़रूरी अहकामात भी जारी किए। पुलिस कमिश्नर के हमरा साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या, एडिशनल सीपी डीएस चौहान व दीगर एहलकार भी मौजूद थे। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा है कि वजीर आला केसीआर पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए जिस तरह इक़दाम कर रहे हैं, वैसे इक़दाम आज़ाद हिंदुस्तान की 75 साल तारीख में किसी ने भी नहीं किए। बीसी वेलफेयर मिनिस्टर ने बताया कि 8,000 करोड़ रुपये की अराजी गरीब और कमजोर तबकात के लिए मख्तस कर दी गई है। जुमेरात को मर्री चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में वज़रा गंगुला कमलाकर
श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी ने 11 तबखात पर मुश्तमिल कम्युनिटी को सर्टिफिकेट्स दिए। गंगुला कमलाकर ने बताया कि पहले 24 तबखात को सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं और जल्द ही तमाम के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। रईतु बंधु, आसरा पेंशन व दीगर फलाही स्कीमात का हवाला देते हुए बीसी वेलफेयर मिनिस्टर का कहना था कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तेजी से तरक्की कर रही है और जिन्हें ये तरक्की और तब्दीलियां नजर नहीं आ रही हैं वो लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना ने बीसी आत्मा गौरव भवन की तामीर का ऐलान किया है और इसी से मुताल्लिक आज एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ तबकात को दस्तावेजात सौंपे गए। मोविस्ट आज़ाद ने पुलिस से चेरला LGS कमांडर रजीता को अदालत में पेश करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक एक मुश्तरका कार्रवाई में तेलंगाना छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुबैना तौर पर CPI मोविस्ट चेरला के गोरेला स्क्वाड कमांडर मदकम कोसी उर्फ रजीता समेत दिगर को हिरासत में लिया है। पुलिस की जानिब से रजीता को तहवील में लेने से मुताल्लिक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन CPI मोविस्ट भद्रादरी कोत्तागुड़म अल्लोरी सीतारामा राजू डिवीजन कमेटी के सेक्रेटरी आज़ाद ने अपने एक बयान में पुलिस से मुतालबा किया कि वो रजीता को अदालत में पेश करें। आज़ाद ने बताया कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहदात पर पुलिस ने डोकुपाडू, कुरनापल्ली और कुनावाई गांव में छापे के दौरान एक मोविस्ट दानी और 4 दलम मेंबरान को भी हिरासत में लिया है और उन्हें डर है कि पुलिस इनकाउंटर में उन माओनवाजों को मार सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मोविस्ट की जान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत और पुलिस होगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जुमा 9 सितंबर को जुड़वा शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद, अजला, मेडचल, बलकाशगिरी और रंगारेड्डी में तातिल का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस को जुमा के दिन गणेश विसर्जन के पेश नज़र तातिल दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि नवंबर की 12 तारीख को दूसरा हफ्ता यानी सेकेंड सैटरडे वर्किंग डे रहेगा। रियासत तेलंगाना के वनापर्ती से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को, जो कि विंड्स नामी ऐप के सारिफ हैं, 25 लाख रुपए का इनाम हासिल हुआ है। आपको बता दें कि गूगल पे की तरह विंड्स भी एक ऐप है जिसके जरिए किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट या पूरे हिंदुस्तान में किसी भी रजिस्टर्ड ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर की जाने वाली हर खरीदारी पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और विंड्स अपने सारिफीन को 5000 विंड्स रिवार्ड पॉइंट जमा करवाने पर लकी ड्रॉ और मेगा बम्पर ड्रॉ में शिरकत के मौके फराहम करता है। लकी ड्रॉ में हिस्सा लेकर सारिफीन 5 करोड़ रुपए के नगद इनामात तक जीत सकते हैं। तेलंगाना के वनापर्ती के राजापेट के रहने वाले जी सत्या रेड्डी ने अगस्त के लकी ड्रॉ में 25 लाख रुपए जीते हैं। आज सेक्रेटरीट के रूबरू वाक़े सहारा मंजिल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और जी सत्या रेड्डी को तहनीत पेश की गई। जोनल हेड कोटेश्वर राव, साउथ हेड डी सुधीर रेड्डी ने 25 लाख रुपए का चेक जी सत्या रेड्डी के हवाले किया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। तैन बाकरी, आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विंस। विंस एक ऐसा सुपर ऐप है जिसपे आप कस्टमर आके शॉपिंग कर सकता है, उसके थ्रू बिल पे कर सकता है, यूटिलिटीज़ के सारे वाउचर्स ख़रीद सकते हैं, नियर बाई कैटेगरीज़ पे शॉपिंग कर सकते हैं दुकानदारों पे, और सबसे बड़ा एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकता है विंड्स के थ्रू। इन सारी शॉपिंग्स पे और स्पेंड्स पे कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स कूपन बनता है, 5000 रिवॉर्ड पॉइंट पे कूपन बनता है और हर कूपन मंथली रिवॉर्ड्स ड्रॉ में जाता है। हर महीने के आखिरी तारीख को हमारा एक रिवॉर्ड्स ड्रॉ होता है। पिछले 8 महीने से हमारा फर्स्ट प्राइज़ 5 लाख रुपए का होता था, इस बार हमने उसको बढ़ा के 25 लाख रुपए किया और हमारी हैदराबाद की खुशकिस्मती है कि तेलंगाना के सत्या रेड्डी जी फर्स्ट टाइम 25 लाख रुपए जीते विंस की तरफ से। उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल कमेमोरेशन किया, यहाँ पे उनका अभिनंदन किया और हमें उम्मीद है कि हम 25 लाख से बहुत जल्दी 2 करोड़ के फर्स्ट प्राइज़ पे जा पाएंगे। बहुत जैसे हम 5 लाख से 25 लाख पे आए, वैसे ही 25 लाख से 2 करोड़ पे फर्स्ट प्राइज़ पे भी बहुत जल्दी जाने का हम लोगों का इरादा है। सर, ये विंड्स कब से? विंड्स हुआ था, एक टेस्ट प्रोडक्ट था और फिर उसके बाद कोविड की वजह से थोड़ा हम लोगों ने स्लो डाउन किया 20 में, लेकिन 2021 से हम लोगों ने इसको एस्केलेट किया। पहला रिवॉर्ड्स ड्रॉ जो था हमारा, उसमें बहुत कम यूज़र्स थे, उसमें 8000 रुपए का पहला प्राइस था।
फिर 8,000 रुपये से हम 1 लाख के गए फर्स्ट प्राइज़ पे, फिर 5 लाख के गए, आज हम 25 लाख का फर्स्ट प्राइज़ हमने डिक्लेयर किया है। और हर महीने इसी तरह हम लोग प्राइजेस देते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ये बिलीव करते हैं कि एक कस्टमर अगर एक प्लेटफॉर्म पे आता है और शॉपिंग करता है तो उसको उसके बदले में उसकी सिर्फ सामान मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। हम उसकी शॉपिंग को, उसके स्पेंड्स को डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रहे हैं, हम उसको रिवॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। तो विंड्स एक दुनिया का सबसे बड़ा हैप्पीनेस प्रोग्राम हम लोगों ने जो कहा है उसको, वो इसी वजह से कहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंसान को हर अपने स्पेंड पे शॉपिंग पे हैप्पीनेस मिले, उसको रिवॉर्ड्स मिले, जो रिवॉर्ड्स उसको आम तौर पे किसी और जगह नहीं मिल सकते। याकूबपुरा MIM रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कल मूसलाधार बारिश से मुतासिर होने वाले हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें कि कल शहर में हुई मूसलाधार बारिश के सबब याकूबपुरा हल्के के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया और सड़कें भी जेर आब आ गई, जिसके सबब 2 घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मुकामी अवाम की जानिब से रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस मसले से वाकिफ करवाया गया, जिस पर उन्होंने चीफ इंजीनियर और जोनल कमिश्नर से फ़ोन पर रब्त किया और नाले के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। रुकन असम्बली के हमरा मुकामी कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बस्ती डिवीजन जवीदपुरा इलाके में माता खिड़की से जवीदपुरा दरवाजे तक कल की बारिश की वजह से काफ़ी पानी नाले में से ओवरफ्लो हुआ। जहाँ तक रिटर्निंग वाल का काम हुआ वहाँ से पानी बाहर नहीं आया, जहाँ दीवार छूटे हुए हैं वहाँ से पानी आया। बहरहाल 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही, लोगों को मुश्किलात रही। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने और ही उनको तेला मिली, फ़ोन पे बात की है। चीफ इंजीनियर रिया साहब से भी बात कराए, जोनल कमिश्नर साहब से भी बात की और ये पाबंद किए कि पहले वहाँ के नाले की डिसिल्टिंग करना चाहिए और काम शुरू होना। 2 महीने से काम जवीदपुरा नाले का रुका हुआ है। कमिश्नर बल्दिया को हम लेटर दिए और ही काम का आगाज़ करिए। अगर इसमें ताख़ीर होंगी, कोई नुकसान होगा पब्लिक में, तो बल्दिया इसकी जिम्मेदार नहीं। तो उन्होंने बता रहे थे गुत्तेदार जिसको बिलों के लिए फिर रहा है, अभी उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, बिल नहीं देते। तो हम बताए कि आप बिल दो न को तो आपका लुकुट है, आप फौरी काम शुरू करो। अगर नहीं करने की सूरत में उनको ब्लैक लिस्ट करो, शॉर्ट टेंडर में दूसरों से काम करा। सेम मदीना नगर, यसफ नगर, सोफी घाट के नाले का भी है, वहाँ के ताल्लुक से भी बताए। याकूबपुरा स्टेशन के पास जो पानी जमा हो जा रहा है ऑटो में, इसमें यहाँ पे भी अभी बल्दिया के ऑफिसर को बताया गया एक बाईपास लाइन के साथ SW10 बनाएंगे ताकि वो पानी नहीं ठहरे। और जिया साहब से भी एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, वो काम करने के बाद ये काम रुक जाएगा, पानी रुकने का मसला हल हो जाएगा। एरिया कारपोरेट ABV फाउंडेशन की जानिब से आज तुलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। विजयनगर कॉलोनी में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल के तुलबा में ABV फाउंडेशन सेक्रेटरी काव्या किशन रेड्डी ने नोटबुक्स तकसीम किए। काव्या किशन रेड्डी ने SSC जमात के तुलबा से उनकी तालीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उन्हें असातिज़ा की बात मानने, दिल लगाकर पढ़ाई करने और कामयाबी हासिल करने का मशवरा भी दिया। उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर करुणाकर और डिवीज़न के BJP लीडर्स भी मौजूद थे। कोरोना वायरस का हिंदुस्तान में फैलाव जारी है। एक ही दिन में कोरोना से 6,395 अफराद मुतासिर हो गए हैं, जिससे कोविड केसेस की तादाद 4,44,78,636 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस कम होकर 50,342 हो गए। 24 घंटों में 33 अमवात हुई हैं और मरने वालों की तादाद 5,28,090 तक पहुंच गई है। 33 अमवात में से 14 अमवात रियासत केरला में हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया है कि एक्टिव केसेस का फीसद 0.1%, जबकि सेहत याबी की शरह 98.7% है। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 252 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। इस बीमारी से सेहत याब होने वालों की तादाद 4,39,00,000 से ज़ायद हो गई है।